آپ کو بتائیں پینے کا صاف پانی مہنگا کرنے کی تیاریاں، لاہور میں پینے کے پانی کا ٹیرف بڑھانے کی سفارشات۔ محکمہ ہاؤسنگ نے ٹیرف پر ریٹ بڑھانے کے لیے حکومت کو تجاویز پیش کر دی۔ 3 سے 5 مرلہ گھر سے ماہانہ 718 روپے وصول کرنے کی سفارشات ہیں، جبکہ 5 مرلہ سے 7 مرلہ کے گھروں سے 938 روپے چارج کرنے کی سفارش سامنے آ گئی ہے، جبکہ 7 سے 10 مرلہ گھر سے 1383 روپے وصول کرنے کی بھی سفارشات سامنے آ گئی ہیں۔ علاوہ ازیں 10 مرلہ سے 15 مرلہ کے گھر سے 1603 روپے وصول کرنے کی سفارشات ہیں۔ 15 سے 20 مرلے کے گھروں سے 2183 روپے وصول کرنے کی سفارشات ہیں۔ ہمارے ساتھ علی رامے موجود ہیں، مزید تفصیلات وہ بتائیں گے اس بارے میں۔ جی علی رامے۔ جی بالکل، ریسورس موبلائزیشن کمیٹی نے سفارشات جو ہے وہ کل حکومت پنجاب کو پیش کی ہے، جس میں واسا کے جو ٹیرف ریٹس ہیں وہ بڑھانے کے لیے جو مختلف پرپوزلز ہیں وہ حکومت پنجاب کے سامنے رکھیں گی، جس میں محکمہ ہاؤسنگ نے جو ریسورس موبلائزیشن کمیٹی کو سفارشات دی تو اس میں کہا گیا تھا 3 سے 5 مرلہ تک جو ٹیرف ہے وہ لاہور میں 287 پر چل رہا ہے، اب اس کو 718 روپے کر دیا جائے، جبکہ 5 سے 7 مرلہ جو یونٹ کے گھر ہے اس میں پہلے جو ایگزسٹنگ ریٹ ہے وہ 375 ہے، اب اس کو 938 روپے تک جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب ایسے ہی 5 سے 7 مرلہ کے جو گھر ہیں ان سے پہلے جو 464 روپے وصول کیے جاتے تھے، اب ان سے 1160 روپے جو ہے وہ وصول کرنے کی سفارشات دی گئی ہیں، اور 10 سے 15 مرلہ کے جو گھر ہیں وہاں پر 641 کا جو ریٹ ایگزسٹنگ چل رہا ہے، اب اس میں 1383 روپے کا ریٹ جو ہے وہ وصول کرنے کی سفارشات کی گئی ہیں۔ اب کیونکہ نئے مالی سال 2024-25 کے بجٹ کی تیاریاں جو ہے وہ جاری ہیں، تو اس میں ٹیکس ریسیپٹس کے حوالے سے ریسورس موبلائزیشن کمیٹی نے اپنی حتمی سفارشات تیار کی، اور یہ سفارشات جو ہے پنجاب حکومت کے سامنے جو ہے وہ رکھ دی ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ کابینہ کے اجلاس میں دے گی۔ جی علی رامے، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر کر دی۔ متحدہ نان بائی ایسوسی ایشن نے حکومتی فیصلہ مسترد کر دیا۔ حکومت نے مشاورت کے بغیر روٹی کی قیمت میں کمی کی۔ آفتاب گل کا کہنا ہے کہ نان بائیوں کی مشاورت کے بغیر قیمتوں میں کمی کو مسترد کرتے ہیں۔ بجلی اور گیس کے نرخ بڑھ چکے ہیں، حکومت پہلے اس میں کمی کرے۔ مزید جانتے ہیں اس بارے میں ہمارے ساتھ بسام سلطان موجود ہیں۔ بسام، آگاہ کیجئے کیا صورتحال ہے اس معاملے پر؟ جی بالکل، رات گئے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے اوپر محکمہ انڈسٹریز کی جانب سے جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے اندر روٹی کی قیمت میں جو ہے وہ 1 روپے مزید جو ہے وہ کمی کر دی گئی ہے۔ بڑی مشکل سے ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو 15 روپے کا نوٹیفیکیشن تھا اس کے اوپر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ شروع کیا گیا تھا، لیکن رات گئے جو ہے وہ نیا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے بعد جو ہے وہ روٹی کی قیمت 14 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے اس اطلاق کو جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پہلے ہی جو روٹی کی قیمت میں جو کمی کی گئی تھی اس سے جو ہے وہ گزارا نہیں چل رہا۔ جو تندور ہے وہاں پر گیس کی جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آٹا ہے اس کی قیمت میں جو ہے وہ کمی کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ اب تک جاری نہیں کیا گیا۔ یہ کہنا تھا نان بائی ایسوسی ایشن کا، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے ان سے مشاورت کیے بغیر روٹی کی نئی قیمت کا جو ہے وہ اطلاق کیا گیا ہے۔ آج سے روٹی کی نئی قیمت کا جو ہے وہ اطلاق ہونا تھا۔ اس وقت میں پرانی انارکلی میں موجود ہوں، یہاں پر جتنے بھی تندور ہیں وہاں پر 15 روپے کی جو ہے وہ روٹی فروخت ہو رہی ہے، جبکہ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ 14 روپے کا کر دیا گیا ہے۔ آج سے اطلاق کیا جانا تھا، ضلع انتظامیہ کی ذمہ داری تھی کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے ذریعے جو ہے وہ اس نئی قیمت کا جو ہے وہ اطلاق کیا جائے، لیکن شہر میں کہیں بھی اس نئی قیمت کا اطلاق ہوتا ہوا جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ 14 روپے کی کہیں پہ بھی جو ہے وہ روٹی فروخت نہیں ہو رہی، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو نان بائی ایسوسی ایشن ہے اس کی جانب سے یہ جو نئی قیمت ہے اس کا جو اطلاق ہے اس کے حوالے سے جو ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کو مکمل طور پر جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں، کیونکہ نہ ہی جو گیس ہے اس کی قیمت میں کمی لائی گئی ہے، گیس کی بندش کا بھی جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ جو گندم ہے اس کی قیمت میں کمی کا نوٹیفیکیشن بھی جو ہے وہ تاحال جاری نہیں کیا جا سکا۔ جی بسام، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ اب کچھ موسم کی بات کریں گے۔ سورج کی تپش سے شہر کے درجہ حرارت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ گرمی کی شدت بڑھنے سے شہری نڈھال ہیں، اور موجودہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کے امکانات بھی موجود ہیں۔
हमारे साथ फातिमा खान है। फातिमा बताइए, मौसम का अहवाल, कितनी गर्मी आज शहर लाहौर में? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सूरज अपने वार दिखा रहा है। क़यामत ख़ेज़ गर्मी है। एक जगह खड़ा होना जो है शहरियों के लिए मुहाल हो गया है। शहरी जहाँ पे निढाल हो गए हैं, हर किस्म का जानदार जो है वो छाँवदार जगह की तलाश में है। इस कदर शहर लाहौर में गर्मी है क्योंकि दर्जा हरारत शहर लाहौर का 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने के बावजूद 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। यानी कि गर्मी की तपिश जो है वो रिकॉर्ड की जितना दर्जा हरारत हो रहा है उससे ज़्यादा महसूस की जा रही है। लू भी चल रही है जहाँ पे वहाँ पे झुलसती हुई गर्मी जो है वो शहरियों को खासा निढाल कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो जाएगा, लेकिन 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किए जाने के इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हवा में नमी का तनासुब 33% है और ये लू की शक्ल में जो हवाएं चल रही हैं 11 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि बारिश के आइंदा 24 घंटों के दौरान और आइंदा आने वाले हफ्ते में और रवां हफ्ते कोई बारिश के इम्कानात नहीं है, तो शहरी एहतियात बरतें क्योंकि माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि हीट वेव जो है उसकी जंग शहर लाहौर में जारी है, जो कि 27 मई तक ये खदशे जाहिर किए जा रहे हैं कि इस खतरनाक गर्मी की लपेट में शहर लाहौर रहेगा। तो शहरी जितना हो सके एहतियात बरतें क्योंकि बीमारियां भी जो हैं शहर लाहौर में खासी जन्म ले रही हैं। फिजाई आलूदगी भी इसके साथ साथ जोर पकड़ रहा है। लाहौर इस वक्त दुनिया में दूसरे नंबर पर आ रहा है और 160 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। माहिरीन का लगातार यही कहना है कि बारिश की कोई पेशन गोई नहीं है, इससे इसी तरह बचा जा सकता है मौसमियाती तब्दीली से कि शहरी एहतियात बरतें और घरों से बिला ज़रूरत ना निकले। जी, एहतियात बहुत ज़रूरी है इस वक्त की सूरत हाल के पेश नज़र। फातिमा, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया मौसम के बारे में। एक माह के लिए SL3 पर टोल टैक्स मुआफ। SL3 पर शहरी मुफ्त सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब के सबसे बड़े मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज़ ने तकमील के बाद रिंग रोड सदरन लूप 3 का भी बाकायदा इफ्तिताह किया। वज़ीर आला की SL4 प्रोजेक्ट के लिए फौरी इक़दामात की हिदायत सामने आई। मरियम नवाज़ ने अद्दा प्लॉट से मुल्तान रोड इंटरचेंज तक रोड का मुआयना किया। वज़ीर आला ने लाहौर रिंग रोड के मुल्तान रोड इंटरचेंज का भी मुआयना किया। सूबाई वज़ीर मुवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत ने प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में बताया गया कि SL3 मुल्तान रोड इंटरचेंज पंजाब का सबसे बड़ा इंटरचेंज है, जबकि उन्होंने कहा कि जनूब से आने वाली ट्रैफिक सदरन लूप 3 पर चंद मिनट में एयरपोर्ट पहुँच सकेगी। मज़ीद जानेंगे इस बारे में हमारी नुमाइंदा मायदा वहीद से। जी मायदा। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया, मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं उन्होंने अब से कुछ देर पहले यहाँ पर मुल्तान रोड इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया है बाकायदा तौर पर, और उसी के साथ साथ लाहौर रिंग रोड का भी उन्होंने विजिट किया है। दौरान इफ्तिताह यहाँ पर उनका कहना था कि एक माह तक यहाँ से जितनी ट्रैफिक गुजरेगी उनको टोल टैक्स बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा और यहाँ से वो मुफ्त सफ़र कर सकती हैं। यहाँ पर जाने वाली दीगर शाहराहें हैं, जैसे एयरपोर्ट हो गया, या अगर उन्होंने कहीं दूसरे इलाके में जाना है, उन्होंने शादरा की साइड पर जाना है, या उन्होंने कसूर जाना है, या उसी के साथ फिरोजपुर रोड पर उन्होंने अगर सफ़र करना है तो वो यहाँ से अपने मुल्का रास्तों पर बिल्कुल जो है वो बआसानी सफ़र कर सकती हैं। बहुत कुशादा सड़कें यहाँ पर बनाई गई हैं जिससे ट्रैफिक का फ्लो जो है वो भी देखने में नज़र नहीं आएगा। उनका कहना था यहाँ से जितनी भी ट्रैफिक गुजरेगी, क्योंकि रूट जो है वो चेंज हो जाएगा, तो जिस तरह से अंदरून लाहौर की जानिब जो है वो जिस तरह ट्रैफिक हैवी देखने में नजर आती है और घंटों जो है वो ट्रैफिक मुतासिर रहती है, सुसरवी का शिकार रहती है, अब उस तरह से उनको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा हैवी ट्रैफिक का फ्लो यहाँ पर देखने में नजर आएगा, जिसके बाइस जो दूसरे इलाकों में ट्रैफिक जो है वो अपने सफर पर रवा दवा रहेगी। और यहाँ पर भी कोई ऐसा सिग्नल नहीं बनाया गया जहाँ पर ट्रैफिक को रुकना पड़े, और जब ट्रैफिक रुकेगी नहीं तो वो अपने सफर की तरफ रवा दवा रहेगी। जी, मायदा हमारे साथ थी, आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। अरबों की मनी लॉन्ड्रिंग के मरकजी मुलजिम मुनिस इलाही के खिलाफ शिकंजा सख्त। FIA का रेड नोटिस के जल्द इजरा के लिए इंटरपोल हेडक्वार्टर से राबिता। मजीद बताएंगे इरफान मलिक। इरफान मलिक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि FIA की जानिब से जो मुनिस इलाही के खिलाफ अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ जो है मुकदमा का इंदराज किया गया था। इस मुकदमे में FIA की जानिब से इनकी अदम गिरफ्तारी के ऊपर अदालत से रजू किया गया। अदालत की जानिब से मुनिस इलाही को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए रेड नोटिस जारी करने के लिए प्रोसेस जो है
वो ख़त्मी मराहिल में पहुँच चुका है। इस हवाले से आपको बताएं कि डायरेक्टर FIA सरफराज मलिक की जानिब से ये बताया गया है कि मोनस इलाही की गिरफ्तारी के लिए जो रेड नोटिस जारी करवाया जाएगा वो FIA की जानिब से जो प्रोसेस था वो मुकम्मल करके जो इंटरपोल हेड क्वार्टर में भिजवा दिया गया है, जबकि अब इसके फॉलोअप के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं। FIA की जानिब से इंटरपोल हेड क्वार्टर में रब्ता किया गया है कि जल्द अज जल्द रेड नोटिस जारी किया जाए ताकि मुलजिम जो हैं, इश्तिहारी मुलजिम मोनस इलाही, उनकी गिरफ्तारी जो है वो इंटरपोल की मदद से करके उनको पाकिस्तान लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर FIA की जानिब से जो मुकदमात का इंदराज किया गया है उसमें बताया गया है कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई जब उनके वालिद परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब थे और मोनस इलाही ने जो अरबों रुपए के असासे जो तैयार किए बनाए और उसके साथ साथ इन असासों की मदद से जो हासिल होने वाली रकम थी उसको मनी लॉन्डर किया गया। इस हवाले से आपको बताएं कि मोनस इलाही क्योंकि गिरफ्तारी से बचने के लिए बैरून मुल्क फरार हैं और अब उनके खिलाफ जो है वो शिकंजा सख्त किया जा रहा है। डायरेक्टर FIA सरफराज मलिक की जानिब से ये बताया गया है कि इसके लिए फॉलोअप किया जा रहा है इंटरपोल हेड क्वार्टर में कि इनके रेड नोटिस जल्दी जारी किए जाएँ ताकि उसके बाद मरकज़ी मुलजिम मोनस इलाही उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा सके। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। सूबे भर के तालीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों का आज आखिरी रोज़। आज से स्कूलों में गर्मियों की तातीलात का आगाज़ हो जाएगा। मज़ीद अहवाल जुनेद रियाज बताएंगे। जी जुनेद। आज लाहौर समेत पंजाब भर के स्कूलों में आज आखिरी रोज़ है और इसके बाद गर्मी की छुट्टियों का जो है वो आगाज़ हो जाएगा और दोबारा तालीमी इदारे जो हैं वो 15 अगस्त से खुलेंगे। लेकिन हुकूमती अहकामात के मुताबिक 31 मई तक जो है स्कूलों में पेपर्स लेने की इजाज़त होगी, जहां पर पहले से जो है पेपर्स जारी हैं। इसी वाले से हम तलबा से बात करेंगे। जी क्या प्लान है जी आज? सर स्कूल का आज आखिरी दिन है, जैसा कि हम अपने सारे दोस्तों का अलविदा कह रहे हैं और जो छुट्टियों की प्लानिंग है हमारी वो तो है कि टूर पे जाएंगे, जहां बहुत अच्छा लगा हम वहाँ जाएंगे। तो लिहाजा गर्मियों में, इस गर्मी में गवर्नमेंट का अच्छा है कि उन्होंने छुट्टियाँ दे दी हैं और ज़्यादातर गर्मियों में बाहर ना निकलें। तो यकीनन बहुत गर्मी है और बच्चों का कहना है कि घर में बैठ के मुताला करें और यहाँ पर और भी बच्चे हम उनसे बात करते हैं। जी आपका क्या प्लान है? हमारा प्लान ये है कि छुट्टियों की गर्मी में हम स्कूल का बैठ के काम भी लिखेंगे और स्कूल आराम फरमाएंगे, जैसा कि बहुत गर्मी पड़ रही है, इसी वजह से हम स्कूल के काम भी लिखेंगे और बहुत सी छुट्टियाँ इंजॉय भी करेंगे। सब दोस्तों से अलविदा हो रहे हैं हम, इसी गम भी है और खुशी भी है। इसलिए हमने बात सुनी, बच्चों ने खूब प्रोग्राम बना रखे हैं कि गर्मी की छुट्टियां कैसे गुजारेंगे। 3 माह का अरसा तकरीबन है और इसमें वो अपना होमवर्क जल्दी के अपने रिश्तेदारों के घर। जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया।